بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں میزبان عدنان جو اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز آفیشیل. ناظرین, ملتان کی مشہور بہادر ذکر یونیورسٹی میں موجود ہیں اور یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر رفعت, جو کہ یہاں کی موسٹ سینئر پروفیسر ہیں, اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ فلاسفی ڈپارٹمنٹ ہے. میم سے پوچھیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں بچے آتے ہیں پڑھنے کے بعد, اسٹڈی کرنے کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ اسکوپ کے بارے میں میم بتائیں گی اور اپنے اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں گی, اور بھی بہت کچھ ہمیں انفارمیشن بتائیں گے. السلام علیکم میم. آپ یہ بتائیں آپ نے یہ شعبہ کیوں چوز کیا؟ دیکھیے, فلاسفی ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں لوگ بائی چوائس ہی آتے ہیں موسٹلی, کیونکہ اس کی اتنی زیادہ مارکیٹ ڈیمانڈ تو نہیں ہے. لیکن ایک جہاں تک میں آپ کو بتاؤں پرسنل گرومنگ کی بات ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی بات ہے, تو یہ فلاسفی کا سبجیکٹ جو ہے یہ ایک ورتھ ہوا. تو میں بھی فلاسفی کو میں نے بائی چوائس جو ہے وہ جوائن کیا, اور میں جی نے جی ماسٹرس کیا یہاں سے بی جی یو سے. 2004 اور 6 کا میرا سیشن تھا, جی جی. اور اس میں نے گولڈ میڈل لیا. میم آپ نے یہ کب یہاں سنبھالا, موسٹ سینئر پروفیسر آپ کب بنی, اور آپ اس کے بارے میں بتائیں, جاب آپ کی کب لگی بہادر ذکر یونیورسٹی میں؟ ایز اے لیکچرر میں نے 2007 میں جوائن کیا, اور ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر میں نے 2014 میں, اور ایز اے سینئر موسٹ ٹیچر ایز این اسسٹنٹ ڈین میں نے 2016 میں اس کو جو ہے جوائن کیا. میم اس ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی کے بارے میں آپ بتائیں تھوڑا سا. جب جوائن کیا تو فیکلٹی کا جو ایک کمی تھی وہ ایک میجر ایشو تھا ہمارے جی پاس. جی تو جہاں وہ پرابلمس تھے وہاں پہ مطلب اسٹوڈنٹ کی شارٹیج آف فیکلٹی, شارٹیج آف فنڈس, یہ سارے ایشوز تھے جن کا ہمیں سامنا کرنا تھا. لیکن اس وقت جب میں نے ایز اے سینئر موسٹ ٹیچر جوائن کیا تو ہم 2 ہی لوگ تھے, جی اور دونوں میں سے کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھا. دونوں ایم فل تھے, میں رفعت اقبال اور میڈم سارہ بطول سید تھی میرے ساتھ. اور اس کے بعد پھر اب ہم نے 1 سال پہلے جو ہے ڈاکٹر نتاشا کرن کو جو ہے ایز اے ٹی ٹی ایس پہ جو ہے ہم نے ان کو ہائر ٹھیک کیا. ہو گیا میم. آپ یہ بتائیں میم, اس ڈپارٹمنٹ میں کون سے کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ کے کام پینڈنگ, تو ایک کوشچن ہی بڑا مجھے تھوڑا سا وہ لگتا ہے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے تو بہت سارے کام جو ہیں وہ شروع سے ہونے والے ہیں. جیسے کہ ڈپارٹمنٹ کی اپنی بلڈنگ بننے والی ہے, بلڈنگ نہیں بنی ابھی تک؟ ابھی تک بلڈنگ اس کی نہیں بنی ہوئی, اور بلڈنگ بنے گی اس کے بعد اوبیسلی اس میں ایک پراپر جی انفراسٹرکچر جی. ہوگا, پراپر لیبس ہوں گی, لائبریری پراپر ہوگی, کلاس رومس پراپر ہوں گے. اب ہم اتنے سارے مسائل ہیں کہ ہم اپنے آفیسز میں ہی اسٹوڈنٹس کی کلاس لیتے ہیں. تو ٹھیک ہو اور گیا. ہمارے ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایم فل ہے, ہمارے پاس 13 اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن ہمارے پاس کوئی پراپر کمپیوٹر لیب نہیں ہے جس میں بیٹھ کے اپنی جو ہے لیٹسٹ مطلب جو آپ کی ڈیمانڈس ہیں ریسرچ کے اس کے جی جی. مطابق وہ ریسرچ کر سکیں. میم آپ یہ بتائیں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے آپ پروگرام کروا رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس بی ایس ہے, ماسٹرس ہے, ایم فل ہے. اس کے علاوہ یہ تو ریگولر جو روٹین بیس جی میں جی. چلتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے ریسنٹلی اپروول لیا سنڈیکیٹ سے, جس میں ہم اس میں ویکینڈ پروگرام اسٹارٹ کریں گے, جس میں ماسٹرس اینڈ انٹر ڈسپلن اسٹڈیز ہے, جی جی. بی ایس فلاسفی ہے جو ویکینڈ بھی ہوگا, آن لائن پروگرام بھی ہوگا. ہمارا ایک پروگرام ایم فل فلاسفی آف سوشل سائنسز بھی اپرووڈ ہے, لیکن پرابلم وہی ہے شارٹیج آف فیکلٹی, کہ ہمیں اس کے لیے مزید 2 پی ایچ ڈیز چاہیے. جی تو جی. وہ جو ہی ہمارے پاس مطلب فیکلٹی کا یہ جو ہے گیپ جو ہے یہ پورا ہو جائے گا, تو ہم ایم فل فلاسفی آف سوشل سائنسز بھی اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا میم. میم اس ڈپارٹمنٹ میں کافی سارے بچے تعلیم حاصل کر کے جا چکے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسے طالب علم جو اچھے عہدے پہ فیض ہوئے ہوں اس ڈپارٹمنٹ سے پڑھنے کے بعد. ہاں جی بالکل, ہمارے 2 اسٹوڈنٹس, ایک نے تو رشیا سے ماسٹرس کرنے کے بعد وہ بھاگلپور یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر جو ہے اپوائنٹ ہوا ماشاء ہوا ہے, اللہ. اور اسی کے ساتھ ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں, وہ بھی وہیں پہ لیکچرر اپوائنٹ ہوئی ہیں. پی پی ایس سی کے ایگزامس دینے کے بعد بلکہ اس میں ٹاپ کیا, ہمارے فرسٹ پوزیشن 3rd پوزیشن ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کے بچوں کی تھی. اور اس میں مس جنیرا ہیں, وہ لاہور میں کالج میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں, اور صحیح. مس ارم بطول ہیں جو یہی ملتان میں ہی کالج میں جو ہے وہ پڑھا رہی ہیں. میم اس ڈپارٹمنٹ کو لے کے آپ کی کیا پلاننگ ہے ان دا فیوچر, آپ اس ڈپارٹمنٹ کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, جو سبجیکٹ ہے فلاسفی, اس کا تو بیسک کام ہی یہی ہے کہ جہاں جہاں آپ کو کوئی انٹلیکچوئل گیپس نظر آ رہے ہیں آپ اس کو فل اپ کریں. تو فلاسفی, یا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹیز کی جو مطلب ایگزسٹنس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریئل لائف میں پرابلمس آ رہے ہیں جی جی. ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, پھر اس کا آپ سلوشن دیں. تو اب میری بھی پوری کوشش یہ ہوتی ہے, میری ساری ریسرچ ماسٹرس کی, جی ایم جی. فل کی, پی ایچ ڈی کی, وہ ساری اپلائیڈ نیچر کی ہے. اسی صحیح. طرح سے ہم یہاں پہ بی ایس میں جو اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کرواتے ہیں وہ اپلائیڈ نیچر کی کرواتے ہیں. تو اس میں صحیح. ہم ڈفرینٹ پرابلمس کو جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر ہم ان کا تھیوریٹیکل ایک سلوشن دے دیتے ہیں.
इस तरह से जो मेरा मास्टर्स का सॉरी PhD में जो मेरा डिसर्टेशन जो मैंने रिसर्च की है वो दायर मैकेंटाइल पे की है, वो अपनी बुक आफ्टर वर्चू में कहते हैं कि फ़िलासफ़ी का जो काम है वो बेसिकली ख़ास तौर से पोस्ट मॉडर्न एरा में, तो वो एक एक्सियल रोल प्ले करती है सोसाइटी में, एक सेंट्रल रोल होता है उसका, और वो तमाम इश्यूज़ को जो है वो फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट डील कर रहा होता है। लेकिन ऑब्वियसली आजकल जो है वो फ़िलासफ़ी का वो स्टेटस तो नहीं है, लेकिन वी हैव टू रिवाइव इट। और उसमें सबसे पहले ये है कि आप देखें कि हमारी जो सब ब्रांचेस हैं फ़िलासफ़ी की, फॉर एग्जांपल फ़िलासफ़ी ऑफ फिज़िक्स है, फ़िलासफ़ी ऑफ मैथमेटिक्स है, फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस है, ये सारी थ्योरेटिकल ग्राउंड्स हैं, और ये हमारे साइंस के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि उनके जो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड है वो क्या है। तो हमारे जो प्लानिंग है जिसके ऊपर मैं बहुत अरसे से काम कर रही थी, और मैंने सिंडिकेट से ये कोर्सेज भी अप्रूव करवा दिए कि हर डिपार्टमेंट में जो है उसकी पर्टिकुलर जो फ़िलासफ़ी से रेलिवेंट जो कोर्स है, जो एक क्रॉस डिसिप्लिनरी कोर्स होता है, वो ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और उस हवाले से हमने एक लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, और उसमें हम अभी अक्टूबर में इंशाल्लाह हमने एक फ़िलासफ़ी ऑफ मैथमेटिक्स पे जो है वो एक सीरीज़ जो है वो हमने देनी है, और डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को देंगे कि जिसमें वो देखें। इसके अलावा जितनी भी रिसर्च मैथडोलॉजीज़ में जो इश्यूज़ आते हैं वो भी फ़िलासफ़ी डील करती है, क्योंकि फ़िलासफ़ी के पास लॉजिक की सूरत में एक ऐसा टूल किट है, मतलब जिसमें कि आप आर्ट ऑफ आर्गूमेंटेशन सीखते हैं, आप उसकी वैलिडिटी इनवैलिडिटी को चेकआउट करते हैं, आप एग्जिस्टिंग थ्योरीज के अंदर जो कंसेप्चुअल या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन से इट इन अदर वर्ड्स के फ़िलासफ़ी का जो है एक समझ लें कि उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होती है। ठीक है, फ़िलासफ़ी जो है वो आपकी इंटेलेक्चुअल जो आपकी ग्रोथ है, आपने सोचना कैसे है, आपने आर्गूमेंटेशन कैसे करना है, उसको मतलब एक तरह से पॉलिश कर देती है। मैम एक फ़िलासफ़र कैसे बनता है? देखें, जनरली कहा जाता है कि एवरी पर्सन इज़ इनबोर्न फ़िलासफ़र। ठीक है, फ़िलासफ़ी बेसिकली एज ए डिसिप्लिन तो हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन इट इज़ बेसिकली एन एक्टिविटी, इट्स एन एक्टिविटी ऑफ फ़िलासफ़ाइजेशन। ठीक है, मतलब आपने किसी भी इशू को उठाना है, आपने इसको रैशनली चेकआउट करना, ना सिर्फ रैशनली, आपने देखना है कि उसकी ग्राउंड्स क्या हैं, मतलब अगर वो एम्पिरिकल ग्राउंड्स हैं तो आपने एम्पिरिकली उसको देखना है, आप देखते हैं कि क्या वो ठीक है कि नहीं, आप क्वेश्चन अबाउट द क्वेश्चंस करते हैं उसमें। सही है मैम, आप कोई पैगाम देना चाहें बच्चों को, अपने डिपार्टमेंट के बच्चों को, या सोशल मीडिया पे कोई ऐसे आपको बात लगती है कि ये ऐसी होनी चाहिए या ऐसी नहीं होनी चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं जो फ़िलासफ़ी के बारे में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। नंबर एक, इसमें एक शायद समझा जाता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में टीचिंग की फील्ड में तो 100% सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ़िलासफ़ी पढ़ने के बाद मिलती हैं। उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड फ़िलासफ़ी का है, मतलब आपने फ़िलासफ़ी पढ़ी हुई है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे सोशल साइंसेस के बाकी सब्जेक्ट्स जो है डिमांड किए जाते हैं, वहाँ फ़िलासफ़ी भी डिमांड किया जाता है, वहाँ आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैंक्स में हैं, NGOs में काम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से बलोचिस्तान से भी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में, वहाँ जाके उन्होंने अपने स्कूल्स खोले हुए हैं। तो ये आपको जो है ना, एक तरह से ऐसा नहीं है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और इसके अलावा आप लीगल असिस्टेंट्स के तौर पे काम कर सकते हैं, आप रिसर्च एथिक्स जो है वो फ़िलासफ़ी का एक अप्लाइड मतलब आपकी एक फील्ड है, उसमें आप जो है अप्लाइड एथिक्स में, बायोमेडिकल एथिक्स में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें एथिसिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। और दूसरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हमें ये समझा जाता है कि शायद फ़िलासफ़ी आपको मज़हब से दूर कर देती है, और ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मज़हब को जो ख़तरा आता है वो ज़्यादातर साइंस से आता है, और हमारी हालत ये है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को तो फॉलो करते हैं लेकिन फ़िलासफ़ी को नहीं कर रहे होते। जबकि हकीकत ये है कि मज़हब के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप एम्पिरिकली चेक नहीं कर सकते, उसको आप लॉजिकली चेक करते हैं। तो जितने भी आप देखें कि मदरसा जो है उनकी एजुकेशन में लॉजिक को, मंतक को पढ़ाया जाता है, और जब आप नॉन बिलीवर के साथ आर्गूमेंटेशन करते हैं, आप उसको कायल करने की कोशिश करते हैं, तो आप वो लॉजिक यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक जो अगर आपका बैकग्राउंड फ़िलासफ़ी का है तो वो आपको वहाँ पे सपोर्ट करती है। तो एक छोटी सी एग्जांपल दूँगी, अब जैसे कि लाइफ आफ्टर डेथ है, इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, ये आपका ईमान है, बीइंग मुस्लिम ये हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है, हम साइंस के ज़रिए इसको प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए साइंस के ज़रिए मज़हब को ये थ्रेट आता है कि जो चीज़ आपकी एक्सपेरिमेंटेशन में नहीं आती वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हम लॉजिक के ज़रिए इसको प्रूफ करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए इसको प्रूफ करते हैं, जो फ़िलासफ़ी कर सकते हैं, जो साइंस नहीं कर सकती। तो ये दो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट लिया जाता है। और बाकी मैं ये कहूँगी कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं,
नेचुरल साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, जी, आप जी। अकाउंटिंग्स पढ़ रहे हैं, आपको अगर टाइम मिलता है फ़िलासफ़ी को ज़रूर पढ़ें। और पर्टिकुलरली जिस फील्ड में आप हैं उससे रेलिवेंट जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको, उसकी फ़िलासफ़ी को ज़रूर एटलीस्ट पता करें। और हमारा मकसद भी ये है कि हम हमारी विद इन द यूनिवर्सिटी हम ये करें कि जितने भी डिसिप्लिन को हम उनके जो फ़िलासफ़िकल या जो आपके कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है वो हम दे सकते हैं, तो हम लेक्चर सीरीज़ के ज़रिए वो उन्हें देंगे। हमने कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए जी, हैं। जी। और इसके अलावा जो आउटसाइड द यूनिवर्सिटी जो हमारे सोसाइटल इश्यूज़ होते हैं उनको हम अपनी रिसर्च के ज़रिए जो है हम डील कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे इंशाल्लाह जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको डील किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पीएचडी में जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी अप्लाइड नेचर की थी, तो मैंने जी, जी। अलेक्जेंडर मैकइंटायर की थ्योरी को एनालाइज किया, उसको अंडरस्टैंड किया। उसके बाद मैंने उनके कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को पाकिस्तान का जो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो इशू उस पर अप्लाई किया, जी, तो उसका एक एटलीस्ट एक थ्योरेटिकल सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो जी। फ़िलासफ़ी मैं यही कहूँगी कि फ़िलासफ़ी आपको हमेशा एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग, आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग में आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके प्रोफेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगी। Thank you. ठीक। तो नाज़रीन आपने देखा मैडम रिफ़त ने बताया, इंफॉर्मेशन दी। फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में आप आते हैं पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद आप एक अच्छे ओहदे पे फैज़ हो सकते हैं। आपको बहुत सारे मौक़े उन्होंने बताया नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जॉब के काफ़ी आपको मौक़े मिल सकते हैं। तो हम इनके काफ़ी शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। देखते रहिएगा पीके न्यूज़ ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम।